Good morning, students. Myself V.S. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. कुछ समय बाद में वापस से अपन कंटिन्यू हो रहे हैं. 2-3 दिन के लिए हमने ब्रेक लिया था. Okay, now continue my class. First, we discuss about for class 9. Continue my chapter. Now new chapter start. Before it already chapter number 6 we already completed. So now chapter 7, triangles. You already about the meaning of triangles. A triangle is the closed figure, closed polygon, which has 3 sides and 3 angles, and also is the property the sum of 3 angles in a triangle is 180 degree, and also based on sides the types of triangles. First is scalene triangles, means all 3 sides are different. Second, isosceles triangle, any 2 sides are equal. And 3, equilateral triangle, means all 3 sides are equal. And based on angles, we divide the triangle in 3 types. Acute angle triangle means all 3 angles are less than 90 degree. And second, obtuse angle triangle means one angle of a triangle is more than 90 degree but less than 180 degree. Third, right angle triangle means one angle is exact equal to 90 degree. So we divide the triangle in 6 types, 3 based on sides and 3 types of based on angles. Okay. Now today we discuss about the most important criteria for the triangle, criteria of congruence of a triangle. This is the criteria is the very important. You know, for example, there are 2 sides are given exact equal. That means both sides are congruent. 2 figures are congruent. That means both are congruent. Exact equal means all the sides and all the angles are equal. Similarly, for 2 triangles, suppose 2 triangles are given. One triangle is ABC and second triangle is PQR. These 2 triangles are both are equal and also similar. Equal and similar, that means both are called congruent. Congruent means triangle ABC and PQ are congruent. That means AB is exactly equal to PQ and BC is equal to QR and AC is equal to PR. Third, 3 all sides are congruent, and also angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, and angle C is equal to angle R. Then we call all 3, these 2 triangles are congruent. So criteria of the congruent of triangle, we take the any 3 parts. Some 3 parts are exact equal, so we say the triangles are congruent. अगर हम कोई भी कुछ ऐसे क्राइटेरिया, कुछ 3 पार्ट्स अगर हम इक्वल करें तो उनके बेसिस पे हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं. अब ये क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं, उन क्राइटेरियाज को मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ. फर्स्ट वी डिस्कस द क्राइटेरिया ऑफ साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी. साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस में इन 2 triangles ABC and second triangle PQR. That means these 2 triangles are congruent if AB is equal to PQ, these 2 sides are equal, and AC is equal to PR, this AC is equal to PR, and angle between them means इन दोनों साइड जो इक्वल साइड्स हैं उनके बीच का एंगल, नॉट बी एंड सी, ये ध्यान रखिएगा.
अगर जो दो साइड्स इक्वल हैं उन्हीं के साइड के बीच का एंगल दिस वन एंड दिस वन मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आर इक्वल, सो दिस क्राइटेरिया इज कॉल्ड साइड एंगल साइड। अगर ये ऐसा है तो थर्ड थ्री पार्ट ऑटोमेटिकली इक्वल्स होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR. So we say these two triangles are congruent. अगर हमने ट्राइंगल को congruent प्रूव कर दिया, अब आप कह सकते हो now angle B equal to angle Q, angle C equal to angle R, and side BC equal to side QR. Means 3 के बेसिस पे हमने ट्राइंगल को congruent किया और अदर 3 पार्ट्स फिर हम बाय साइड कॉन्ग्रुएंट के बेसिस पे हम उनको इक्वल कर सकते हैं। अब ये जो 3 पार्ट्स हम इक्वल प्रूव कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ये कोई भी 3 पार्ट एनी 3 पार्ट्स नहीं होने चाहिए, ये जो 3 पार्ट्स हैं उनके बेसिस पे कॉन्ग्रुएंसी होती है। और उनमें हमने सबसे पहले हमने जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट पढ़ा है वो है साइड एंगल साइड। तो याद रखिएगा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस में any two sides and angle between them are equal, then triangles are congruent. And after that, by CPCT, triangles are all other parts are automatically equal. Now, what is the meaning of CPCT? Now, first thing, CPCTE. It is the complete sentence. It is a short form of CPCT. एक कंप्लीट सेंटेंस को लिखने की बजाय हम शॉर्ट फॉर्म में उसको सीपीसीटी लिखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। एक बार फिर से पढ़ रहा हूं मैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, जैसे मैंने कहा ए बी एंड पी क्यू आर इक्वल, दिस टू आर कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ यहां पे नजर नहीं आ रहा है, वो आपको रीड करना है, ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है आर इक्वल। आर और ऑफ यहां पे छिप रहा है, तो इसका फुल फॉर्म है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली यू कैन राइट सीपीसीटी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इनके बेसिस पे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना। एक फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम एक क्राइटेरिया और यूज करेंगे यहाँ पे, सेकंड क्राइटेरिया। नाउ सेकंड क्राइटेरिया इज एंगल साइड एंगल। जैसे हमने साइड एंगल साइड किया वैसे ही यहाँ एंगल साइड एंगल है। सिमिलरली अगर मैं दो ट्रायंगल्स को लिखता हूं ABC एंड PQR, इस बार हम एंगल A इक्वल टू एंगल P ले रहा हूं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो एंगल A और B के बीच का साइड कौन सा है? एंगल A और B के बीच का साइड जो है वो साइड AB इज इक्वल टू PQ। इसको हम बोलते हैं एंगल साइड एंगल। दिस ट्रायंगल्स आर, बाय यूजिंग दिस क्राइटेरिया you can say these two triangles are congruent। अब बात करते हैं हम, यहां बात अगर हम करते हैं इस क्राइटेरिया को हम एंगल साइड भी लिख सकते हैं। अब आप कहते हो ऐसा क्यों? एक बात बताइए, सम ऑफ 3 एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180। इफ एनी 2 एंगल्स आर इक्वल देन ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल्स आर इक्वल। अगर 2 एंगल इक्वल है तो उनका सम जो होगा उनका सम सेम होगा, और उनको 180 में से माइनस करोगे तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि अगर हमने 2 एंगल, एनी 2 एंगल्स और एनी वन साइड, तो यहाँ हम कह सकते हैं एनी 2 एंगल एंड एनी वन साइड आर इक्वल, देन यू कैन से ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। उस क्राइटेरिया को हम बोलते हैं एंगल साइड। तो यहाँ पर एंगल साइड एंगल हो या एंगल साइड हो या साइड एंगल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आप इसके बेसिस पे भी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। मींस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल्स PQR। इस सिंबल को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, जहाँ सिमिलर का भी सिंबल आ रहा है और इक्वल का भी सिंबल आ रहा है। दैट मीन्स बोथ एग्जैक्टली इक्वल। इक्वल का मीनिंग यहाँ पर हम सिमिलरली, अगर हम एक पार्ट है, सपोज ये
मार्कर है, इस मार्कर के पीछे जस्ट मैंने एक मार्कर लिखा है। अगर मैं सीधा देखता हूं एग्जैक्टली तो आपको एक ही मार्कर नजर आएगा। और अगर हम ऐसे देखते हैं तो ये 2 मार्कर्स आपको नजर आ रहे हैं। एक एग्जैक्ट इक्वल बुक के मैथमेटिक्स की अगर 10th क्लास की बुक लेते हैं, उसके बुक के ऊपर बुक रखते हो तो आपको अगर सीधा देखते हो एक के ऊपर एक रख के तो आपको एक ही बुक नजर आएगी। लेकिन अगर आप इस तरह से देखोगे तो आपको 2 बुक्स नजर आएगी, क्योंकि वो दोनों एग्जैक्ट इक्वल है। वाई? बिकॉज ऑल कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। सिमिलरली यहाँ पर भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है, आपको एक ही नजर आ रहा है, लेकिन आप ऐसा देखेंगे तो आपको 2 नजर आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कॉन्ग्रेंट होती हैं। ये प्रैक्टिकली लाइफ में भी हम जनरल हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं और यूज़ करते भी हैं। तो कॉन्ग्रेंट या ट्रायंगल की बात हो रही है, तो अभी अपन इस ट्रायंगल्स को हम आगे चलकर हायर क्लासेस में हम यूज़ करेंगे, कॉन्ग्रेंट पार्ट्स को और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स को। तो अभी अपन ने कितने क्राइटेरियाज यूज़ किए, एक तो साइड एंगल साइड और एक एंगल साइड एंगल। इनके बेसिस पर हम किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स में डिस्कस कर रहा हूँ, उनके बेसिस पर आप एक्सरसाइज 7.1 आप इजीली डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं, वैसे तो कभी सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं और वैसे मैं करवा दूंगा अगर आपको नहीं कोई भी डाउट हो तो। अभी मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ। नाउ फिगर इज ऑलरेडी गिवन। जनरली इन क्वेश्चंस में आपको फिगर आपको गिवन है ऑलरेडी, this one. The figure is given. In figure, AB is the side and CD is the so side with center O. Now given that in this figure OA equal to this OA equal to OB, equal जो पार्ट्स हैं उनको मैं साइन भी सेम दे रहा हूँ, and OD equal to OC. Now OD equal to OC, that means these two are equal. यहाँ सिंगल डैश है तो वहाँ डबल डैश दे दिया। चलिए, एंड शो दैट, अब आपको शो करना है। फर्स्ट आपको क्या शो करना है, ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, ये आपको प्रूव करना है। सेकंड पार्ट आपको प्रूव करना है AD इज पैरेलल टू BC, ये 2 पार्ट आपको प्रूव करने हैं। तो चलिए इनको प्रूव कैसे किया जाता है। इन फिगर को देख के अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशंस की बात करते हैं अगर, तो बहुत ही इजी सॉल्यूशंस है इनका। यू नो, फर्स्ट यू कैन राइट OA इक्वल टू OB। पहले आप लिखोगे इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। देखो नेमिंग का भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। AOD लिखा है तो AO के इक्वल कौन सा पार्ट है, OB, तो मैंने O से वापस स्टार्ट किया OBC। यहां लिखिए आप AO इक्वल टू BO, दिस इक्वल टू दिस वन। सेकेंड आप लिख सकते हैं यहां से OD, तो आपने लिखा OD इज इक्वल टू दिस वन CO। यहां OD है तो यहां भी OC है। अब आप लिख सकते हैं दिस टू एंगल्स आर इक्वल। एंगल 2 पार्ट इक्वल है, एक अपने खुद ने फाइंड आउट किया। दिस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। अब y, इसका रीजन आपको लिखना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं पहले वो आप यूज कर सकते हैं, और इनके लिए आप यूज कर सकते हैं गिवन। ये आपको गिवन है और ये आपने यूज कर लिया, तो कौन सी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल। तो आप लिख सकते हैं नाउ बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। तो फर्स्ट तो मैंने ये प्रूव कर दिया। सेकेंड हमें प्रूव करना AD पैरेलल टू BC। नाउ अब आप लिख सकते हैं बाय CPCT। बाय CPCT यू कैन राइट, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यू कैन राइट एंगल C एंड एंगल D आर इक्वल। एंगल C इक्वल टू एंगल D एंड आल्सो एंगल B इक्वल टू एंगल A। यू नो दिस 2 एंगल्स आर, अगर ये 2 साइड्स हैं और
अगर ये दो एंगल्स इक्वल है तो ये एंगल्स होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप यहां पे लिख सकते हैं बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो आप कह सकते हैं साइड्स आर आल्सो पैरेलल। सो देयरफॉर आप लिख सकते हैं AD इज पैरेलल टू BC। तो चलिए, ये तो आप हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये अपन ने एक प्रॉपर्टी फर्स्ट साइड एंगल, साइड की बेसिस पर मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, बिल्कुल ही सिंपल। एक्सरसाइज में भी सेम ऐसे ही सम आपको गिवन होंगे और उसी के बेसिस पे आपको कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। और एक एक्सरसाइज आपको एक दिन में कंप्लीट करनी है और डाउट्स जो होंगे वो आपको व्हाट्सएप पे जो भी हैं वो आप इजीली आप प्रूव कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। Okay students, so now next we start the second question. Example number 2. Now example number 2 is given AV is a line segment, okay? First do AB is a line segment. अगर सपोज फिगर नहीं गिवन है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप फिगर बना सकते हैं। AB is a line segment. Second, a line L is the perpendicular bisector it. एक लाइन है this one. Suppose it is the line or it is the perpendicular or it is the bisector. तो एक पॉइंट नाम दे देते हैं। सपोज आपने कोई नाम दे दिया O. Now this is equal to this one. अगर ये perpendicular bisector means perpendicular भी है और bisector भी है। If a point P lie on L, अगर यहाँ पर इसके ऊपर कोई पॉइंट P है, चाहे वो यहाँ लिखें चाहे यहाँ, ऊपर ज़्यादा इजी रहेगा। तो now second, so that P is equidistant from A and B. आपको शो करना है this point P equidistant from A and B. So अगर आपको equidistance प्रूव करना है, so first we join A to P and B to P. तो मुझे प्रूव क्या करना है, ये दो पार्ट इक्वल प्रूव करने हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए, ये दोनों ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलते हैं यहाँ से। तो चलिए इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, AOP एंड ट्रायंगल BOP। तीन पार्ट आपको ढूंढनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, AO इक्वल टू BO। एक पार्ट तो गिवन ही है बाइसेक्टर। एक आप लिख सकते हैं OP इक्वल टू OP। वाई, ये आपका है कॉमन पार्ट। OP जो है इट इज द साइड ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स। जो कॉमन पार्ट है उनको आप इजीली यूज कर सकते हैं और ये आपको गिवन था। यहां पे आपको रीजन जरूर लिखना है क्योंकि रीजन के मार्क्स मिलते हैं, रीजन को छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट, दिस एंगल इज द 90। तो आप चाहे तो नंबरिंग कर सकते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज ईच 90 डिग्री। इट इज द गिवन। हो गया आपका बाई साइड एंगल साइड। आई थिंक इज ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP। नाउ बाय CPCT। अब आप कह सकते हैं बाय CPCT BP PA इज इक्वल टू PB। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यू कैन से P इज इक्विडिस्टेंस from A and B. It is proved. ये हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। तो नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 हमने यहाँ पे प्रूव किया।
और ये बात हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज नंबर 7.1 4 क्लास 9 के लिए। नेक्स्ट एंगल साइड एंगल के बेसिस पे अभी हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, तो देखते हैं अगर इसके बेसिस पे एग्जांपल मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज हम कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, एग्जांपल नंबर 3 नाउ इज द लास्ट एग्जांपल। दिस एग्जांपल इज गिवन, this time line segment AB is parallel to another line segment CD. O is the midpoint of AD, and so that this time is the figure is already given. So A, B and O and D and C, and these are equal. What is the given? आपको गिवन है AB is parallel to CD. This time is given. O is the midpoint. अगर O midpoint है तो आप लिख सकते हैं OA equal to OD. अब आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है फर्स्ट, ट्राइंगल AOB is congruent to triangle DOC. सेकेंड आपको प्रूफ करना है O is also मिड पॉइंट। मीन्स अगर O AD का मिड पॉइंट है तो इस बार आपको यह भी प्रूफ करना है कि O इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ CD। ये तभी प्रूफ होगा जब आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए, बहुत ही इजी है, इजीली आपको प्रूफ कर सकते हैं आप चाहें तो। नाउ सिंपल, पहले आप लिखिए इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, लिख दीजिए जो जो गिवन है आपको। जो गिवन है, एक साइड गिवन है आपको OA इक्वल टू OD, OD एंड OD, O एंड OD। अब साथ में एंगल ले सकते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये आपको गिवन था। अब बात आती है दूसरी, जब लाइंस पैरेलल है तो उसको भी यूज कर लीजिए। पैरेलल है तो आप चाहें तो एंगल 3 और एंगल 4 को आप इजीली, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, चाहे तो इन दोनों एंगल्स को भी आप यूज कर सकते हैं। बस दो एंगल आ गए और एक साइड आ गई, तो आप चाहें तो लिख दें बाय एंगल साइड ट्रायंगल AOB is congruent to triangle DOC. These two triangles are congruent by CPCT. By CPCT, OC means OB equal to OC. Means O is also midpoint. इसके बेसिस पे आप लिख सकते हो therefore O is also midpoint of BC। ये कंप्लीट प्रूफ हो गया। तो फाइनली हमने 3 एग्जांपल्स कर लिए। क्या पढ़ा अपन ने आज? कॉन्ग्रुएंट, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल एंड एंगल साइड। इन 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे आप दो ट्रायंगल्स को एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। प्रूव करने के बाद में आप अदर 3 कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को ऑटोमेटिकली आप बाय CPCT के बेसिस पे आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंट आप कह सकते हो। जो प्रूव करना आप वो प्रूव कह सकते हो। इस पूरे चैप्टर में हम कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स को ही अपन डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये आप एक्सरसाइज 7.1 आपके लिए होमवर्क हो गया। 7.1 को आपको कंप्लीट करना है, आपको खुद को करना है। आप 9th क्लास में आ चुके हो, कंप्लीट करो और कोई डाउट्स हो तो मोस्ट वेलकम, पूछिए। लेकिन आप पूछ नहीं रहे हो वो एक अलग बात है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू and good day.